Hello students, welcome back to my channel Study with Disha and आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस ऑपरेशंस. So every business operates in a dynamic environment that is influenced by two factors such as internal factor and external factor that affect the operations or working of an organization or the company and firm. क्या कहते हैं, हर एक बिजनेस ऑपरेट करता है डायनेमिक एनवायरनमेंट में जो कि इन्फ्लुएंस होता है दो फैक्टर से जिसे हम कह देते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं वर्किंग ऑपरेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंपनी या फर्म. इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं? दोज फैक्टर्स दैट आर इंटरनल टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फर्म और कंपनी. इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरनल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो कंपनी कंट्रोल कर सकती है. सो पहला हमारा इंटरनल फैक्टर है एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज आर एन इंटरनल फैक्टर इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द कंपनी कैन कंट्रोल द प्रोडक्टिविटी ऑफ the employees or the company or firm can give promotions to the deserving employees, and if the employees are fully satisfied with their job position and the salary, then their productivity will be enhanced, which automatically increases not only the goodwill of the company but also the profitability of the company or profitability of the company. Yep. ये क्या कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक इंटरनल फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन का क्योंकि कंपनी जो है इन्हें कंट्रोल कर सकती है इन द सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी. और जैसे कि वो जो डिजर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें प्रमोशंस देगी, तो जो सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ हैं जो अपनी पोजीशन से सेटिस्फाइड अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड है दे विल फील हैप्पी. जब वो हैप्पी होंगे वो सेटिस्फाइड होंगे उनकी प्रोडक्टिविटी मोर होगी. जो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट है वो ना कि सिर्फ गुडविल कंपनी की रेपुटेशन अच्छी करेगी और वो कंपनी को प्रॉफिट्स भी देगी. Next is management. Management of the company also consider under the internal factor of an organization because the policy and various procedure could be changed or it can be renewed depending upon the needs of the organization or the firm. Obviously जो company की management है जो policies बनाती है procedures देती है ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए वो change भी हो सकती है renew भी हो सकती है जब भी organization को ज़रूरत पड़े. Next is external factors. External factors are external to an organization and cannot be controlled by the firm or the company. जो factors जो organization के बाहर होते हैं जिन्हें जो कंपनी है वो कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे कि competitors. The firm can change the policy and price of its own produced goods and services, but it cannot change the prices which are offered by the competitors. So if the competitors increases the prices of their goods and services, then sales of our company will be more. If our competitor are going to reduce their prices, then our company sales will be lower as people will prefer to buy the products which are cost effective. हम इसमें क्या है जो फर्म है अपनी जो फर्म है वो अपनी पॉलिसी और अपने प्राइसेस चेंज कर सकती है बट कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस वो नहीं चेंज कर सकती. अगर कॉम्पिटिटर ने मानो अपना प्राइस बढ़ा दिया है गुड्स एंड सर्विसेज का तो लोग हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट की और सर्विसेज की सेल्स ज़्यादा होगी. अगर कॉम्पिटिटर्स ने अपना जो प्राइस है वो कम कर दिया है तो क्या होगा, तो फिर हमारे जो सेल्स हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि वो उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमेशा जो लोग होते हैं उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए मोस्टली. Next is supplier. The suppliers come under external factor to an organization as they influence the working of the business. For instance, if the supplier provide good quality raw material, then finished goods will be of good quality. And on the another side, if the supplier provides poor quality of raw material, then the finished goods will be of lower quality. It will negatively affect the goodwill of the company and also lower down the sales of an organization. सप्लायर जो है वो भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को. अगर सप्लायर ने गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल दिया तो ऑब्वियसली फिनिश गुड्स भी अच्छी क्वालिटी के होंगे. ठीक है, अगर उन्होंने लोअर क्वालिटी का रॉ मटेरियल दिया तो हमारे फिनिश गुड्स भी अच्छे नहीं होंगे, वो भी पुअर क्वालिटी के ही होंगे
जो कि हमारी जो गुडविल है, कंपनी की रेपुटेशन है, उसे नेगेटिवली अफेक्ट करेगी और जो हमारी सेल्स है वो कम हो जाएंगी। Political factors. It greatly affect the operation of an organization. For instance, there are special economic zone under which the government will provide concession and subsidies to an organization that will build its plants in rural area. This policy will help the organization and make new plant at a reasonable cost, and it will also enhance the goodwill of the company as they do something for the benefit of the society. As the new plant is built, then there will be more employment opportunities for the rural population. Political factors, ये भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। अभी बहुत सारी पॉलिसीज होती है जिसमें एक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, उन कंपनीज को सब्सिडीज और कंसेशन प्रोवाइड करती है जो कि अपना प्लांट जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनाते हैं, जो कि मोस्टली रूरल एरियाज में होते हैं। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका जो न्यू प्लांट है वो एक रीजनेबल कॉस्ट से बन जाएगा, जिससे क्या होगा, ये गुडविल जो है कंपनी की रेपुटेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सोसाइटी उनके फेवर में आ जाएगी। लाइक वो कुछ कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि अगर वो वहां पे अपना प्लांट लगाएंगे रूरल एरिया में तो जो रूरल पीपल है उन्हें वो एम्प्लॉयमेंट देंगे, जिसकी वजह से जो हमारी गुडविल है मार्केट में वो बढ़ जाएगी। यस, दैट्स एवरीथिंग फॉर दिस वीडियो।